Good afternoon. Today I am presenting my topic that I have chosen for this very important webinar organized by Department of Economics, Commerce and Sociology on coronavirus disease and its consequences on economy and sociology of India. And I have chosen the topic of issue of poverty, global burden of disease and COVID-19 because this coronavirus pandemic have affected and will affect it at last mostly to the poor, and the most concerned part is the health issue, global health issue, and whether the global burden of disease will increase or what will be the solution. This we have to check in the coming years. So let us introduce this topic for the webinar. We know that the risk factors and disease that threaten health globally have changed significantly in the past few decades as highlighted by global burden disease reports. Behavioral risk and its factors and environmental issues are significant determinants of health and can explain about 40% of the burden globally. This is very important when we are talking about present COVID-19 case. The global burden disease quantifies health, loss and fatality from disease factors by age, sex, population and over time. At present, COVID-19 coronavirus pandemic is the greatest global burden disease which is threatening almost all the countries in the world, of course including India. So the paradigm is shifting, development paradigm is shifting, the model of the development paradigm is shifting and will shift in the coming future. The present extent and severity of COVID-19 coronavirus pandemic may force to rethink about the present development models and may shift in international development rethinking from main focus on nations and economic growth to more focus on non-economic issues and on human beings as proper referent objects of the development. Surely, COVID-19 pandemic will impact the fight to end extreme poverty, and the crisis will devastate the world's most vulnerable people and the groups. Countries with large poor population, including India, are more likely to go undetected, to be undetected or to be underdetected, that have fewer resources available to tackle this corona calamity. पूरी दुनिया में ये जो रोग है ये वैश्विक संकट है, भारत भी उससे प्रभावित है, लेकिन भारत जैसी जनसंख्या अधिक वाला देश जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद भी है, लेकिन हमको इससे भयभीत नहीं होना है। इसके लिए डेवलपमेंट के मॉडल को शिफ्ट करने की बात हम कहना चाहते हैं और ये इस पेपर का डिमांड है। थ्रेट क्या है? द फॉलोआउट फ्रॉम द कोविड-19 स्प्रेड दैट हैज किल्ड अराउंड 1.4 lakh people around the world. I am talking till 15th to 16th April only, with total affected case of more than 2.3 million, and record distress on economics around the world could push around 500 million people into poverty and morbidity trap. ऐसा होने जा रहा है जहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और 23-24 लाख लोग उस रोग से पीड़ित हैं। तो इसका इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर बहुत दुनिया पर पड़ने जा रहा है और गरीबी और बीमारी के ट्रैप में दुनिया के अधिकांश देश हो सकता है फंस जाए, इसमें भारत भी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, वीमेन आर द मोर रिस्क देन men, as they are more likely to work in informal economy
with little or no employment risk, India will also severely hit by this pandemic. As per ILO, COVID-19 crisis has the potential to push around 40 crore informal sector workers in India deeper into poverty. With it lockdown and other containments measures affecting jobs earnings, ये जो लॉकडाउन की अवधि है ये मस्ट है टू कर्ब दी कोरोना वायरस. ये हमारे लिए एकमात्र इलाज है, क्योंकि इसका अभी मेडिसिन नहीं निकला, दवा नहीं निकला है, वैक्सीन नहीं निकला है. तो लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन से हो क्या रहा है कि आने वाले समय में सबसे अधिक प्रभावित इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर्स होंगे, जॉब का लॉस होने जा रहा है. लेकिन ये सब इस रोग के नियंत्रण करने के बाद का डिस्कशन है, लेकिन हमको आज से कॉशियस रहना है, एक रोड मैप तैयार करना होगा. यही इस वेबिनार का एक तरह से उद्देश्य भी है. एज द कोरोना वायरस केसेस इंडिया क्लाइंब, imposing a lockdown on 1.3 billion people will challenge the Indian economy severely. So far, I am talking about till 16 April only, India has a report of 12,380 cases and nearly 414 deaths already have reported. तो भारत में भी धीरे धीरे इसके पांव पसर रहे हैं. इसलिए हमें विश्व के देशों की परिस्थिति देखकर हमको अपने प्लान को बनाना होगा. और ये डिजीज का जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वो क्या है, आप इसको थोड़ा देखना चाहिए. कम्युनिकेबल मैटरनल नियोनेटल एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैव स्टेडली डिक्लाइन अराउंड द वर्ल्ड. ये सब तो डिक्लाइन हो रहा है. वाइल द वॉल्यूम ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैज एक्सप्लोडेड, ड्राइवन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एजिंग पॉपुलेशन. एजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया विकसित देशों में. In 2016, the WHO estimated that poor sanitation practices were responsible for 8,29,000 deaths from diarrheal disease, equivalent to 1.9% of the global burden of disease. सोचिए, इसके पहले भी डेथ्स होते थे, लेकिन ये डेथ्स के कारण ये सब थे. पैनाडेमिक जो हमारा कोविड आया है, ये इसमें अगर जुड़ जाएगा तो बर्डन ऑफ डिजीज कितना ज़्यादा होने जा रहा है. ये इसीलिए ये पेपर इम्पोर्टेंट पेपर के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. और वेयर द बर्डन इज हाई, रिपीटेड इलनेसेस फॉर फैमिली मेंबर्स कैन ट्रैप हाउस होल्ड्स इन ए वाइसेस सर्कल पॉवर्टी साइकिल. और अगर ये सारी चीज़ें उसमें और जुड़ जाएंगी, कोविड-19 जैसा पैंडेमिक, तो पॉवर्टी का ट्रैप और बढ़ने जा रहा है. इश्यूज क्या हैं, पॉवर्टी और हेल्थ इश्यूज क्या है, इसको जल्दी जल्दी अगर हम समेटें तो कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहला इशू है कि वल्नरेबल कम्युनिटीज हैव अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर. ये फैक्ट है कि जो वल्नरेबल पीपुल हैं उनको रीच आउट हेल्थ उनके लिए कमी है, और एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है कोविड-19 के बाद भारत जैसे देशों में. फिर लोअर इनकम पीपुल आर मोर एट रिस्क ऑफ डिजीज, और इस तरह के डिजीज में हमेशा लोअर इनकम ग्रुप के लोग रिस्क में रहते हैं. इसलिए आयुष्मान भारत जैसी योजना भारत सरकार की कारगर सिद्ध हो सकती है, और उसको और स्ट्रांग बनाने की हम वकालत कर सकते हैं. और नेक्स्ट है पीपुल लिविंग इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लैक प्रोटेक्शन. और जो सीमांत लोग हैं, जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन एरिया में नहीं आ पा रहे हैं, और हमको इसके लिए प्लान बनाना होगा. एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इज मोर लिमिटेड ड्यूरिंग क्राइसिस. और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर है, जिसमें कि हम वीमेन की बात करते हैं, 232 million women who want to avoid pregnancy are not using safe and effective family planning methods. Evidence from previous epidemics suggests disease outbreaks significantly limit availability to reproductive health care and family planning, while resources are diverted to address the crisis. तो ये भी चिंता होना होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी हम कैसे एड्रेस करने आने वाले समय में करें, क्योंकि इससे हमको बचना नहीं है, इस पर हमको रोड मैप तैयार करना होगा. जॉब इनस्टेबिलिटी परपेचुएट्स पॉवर्टी, और इसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो जॉब एम्प्लॉयमेंट पर होने वाला है. इस तरह ये पॉवर्टी को बढ़ाने की बात कर सकता है अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे. और इम्पैक्ट ऑन वुमेन सबसे अधिक हमने बताया कि पढ़ने जा रहा है. जो प्रेजेंट ग्लोबल स्थिति है कोविड-19 का, वो है कि द फॉल आउट फ्रॉम द कोरोना वायरस स्प्रेड दैट हैज किल्ड मोर देन 1.4 lakh till 15th-16th April as I will trade, and this is threatening the most of the country's population
to be trapped into poverty cycle. The economic crisis that is rapidly unfolding is deeper than the 2008 global financial crisis. 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा था वो बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेकिन ये क्राइसिस उससे कुछ 2 कदम आगे है और उससे भी तेजी से पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था नीचे गिरने जा रही है. कौन सी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कौन सी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो जाएगी, ये अभी एनालिसिस का विषय है. लेकिन कंसर्न हमको करना है कि भारत जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करते हुए कोविड-19 के इस आउटस्प्रेड को गरीबों तक धन मुहैया कराने पर, सुविधा मुहैया कराने के अलावा, सब्सिडीज प्रोवाइड कराने के अलावा, एसएमईज को बचाने के अलावा, जो आज अभी आरबीआई ने प्रेजेंट भी किया है अपना एक बहुत बड़ा रोड मैप, ये सारे मेजर्स को हम देखते हुए कैसे इकोनॉमी को बूस्ट अप करेंगे, ये सब देखने वाली बात है. द सेम सिनेरियो वुड सी द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो टू $5.5 a day थ्रेशोल्ड राइज बाई 548 मिलियन. दुनिया में गरीबों की संख्या अभी बढ़ रही है. इशू पॉवर्टी का क्या है कि कोरोना वायरस में स्टॉप ऑलमोस्ट 24 मिलियन पीपल फ्रॉम एस्केपिंग पॉवर्टी इन ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक. द वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्टेड इन द रिपोर्ट रिलीज ऑन मार्च में जो उन्होंने कहा था कि करीब 24 मिलियन पीपल जो है गरीबी से जो पीछा छुड़ाने वाले थे वो नहीं छूट पाएगा, ये खतरा बना हुआ है. लो इनकम पीपल इन द रीजन डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज वल्नरेबल टू द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द वायरस लाइक टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग. सबसे अधिक इम्पैक्ट टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है. इसलिए हमको आज आरबीआई का जो पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, क्योंकि वी हैव टू strengthen the tourism and manufacturing sector after COVID effect. Disease outbreaks and poverty are a vicious circle. Widespread declining economic status lead to more disease, which leads to more poverty. इस पर भी ध्यान देना होगा. और women are at the more risk. So भारत की जो स्थिति है इस पूरे कोविड-19 के दौर में, according to World Bank 2015 estimates, India has 176 million people living in extreme poverty on less than $1.9 a day. The United Nations 2019 Multidimensional Poverty Index (MPI) हम अपने पीजी स्टूडेंट्स को उसको पढ़ाए भी हैं. A more holistic measures of poverty that looks at deprivation through the lens of nutrition, health indicators, schooling, sanitation, and access to essential amenities puts the number of poor in India अप टू 369 पीपल. अगर ये सब जोड़ दिया जाए, पोषण, स्कूलिंग, स्वच्छता, तो गरीबों की संख्या बढ़ जाती है. इसलिए भारत सरकार की जो पहली योजनाएं चलती थी वो गरीबों को एम्पावर करने के लिए चलती थी, वो बाधित नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पर पोस्ट कोविड-19 इफेक्ट के बाद भी. गवर्नमेंट डाटा शोज एन एवरेज इंडियन रूरल हाउस होल्ड्स हैव ए मंथली सरप्लस ऑफ 1413 रुपीज ओनली, दैट इज $18.5 मंथली, विच इज ऑफन यूज टू रिपे देयर डेब्ट्स. ये कठिन समस्या कि अपने ऋण का वो चुकता इसे नहीं कर पाते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ नियर स्टार्वेशन इज नाउ बीइंग डिस्कस इन द मेनी रूरल एरियाज इंडिया. स्टार्वेशन की समस्या भी अब धीरे धीरे गहराने की ओर बढ़ता जा रहा है. ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी है. व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्राइसिस थ्रू कोविड-19? That potential to push around 40 crore informal sectors workers India deeper into poverty. And with the lockdown and other containment measures affecting jobs and earning, India has imposed a 3-week lockdown till April 14, and further it extended now till 3rd May 2020 to contain the pandemic. India is among the countries less equipped to handle this situation. हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इसलिए लॉकडाउन एक मात्र इलाज है. लेकिन उसके साथ साथ हमको पैरेलल में, जैसे आज आरबीआई ने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने किया था, इसके पहले सब्सिडी के थ्रू अनाउंस किया था, ये मेजर साथ साथ हमको करते रहना चाहिए. इन इंडिया with the share of almost 90% of people working in the informal economy, about 400 million workers in the informal economy are at the risk of falling deeper into poverty during this crisis. ये ILO के रिपोर्ट में है. What are the preventive methods? प्रिवेंटिव मेथड्स बहुत सिंपल है और एक तरह से ये जागरूकता का भी कार्यक्रम में, इसको अवेयरनेस के रूप में लिखा जाता है कि जो सेफली मैनेज वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वी यूज टू कॉल इट वॉश in capital letter WASH, that is water sanitation hygiene. ये जो यूनाइटेड नेशंस WHO का मेजरमेंट है, ये सर्विसेज को हमको एसेंशियल बनाना होगा.
of preventing and protecting human health during infectious disease outbreaks इंक्लूडिंग द करंट कोविड-19 पैंडेमिक। हमको वॉश का जो होता है, भारत सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया था, मोदी सरकार ने बहुत ध्यान दिया था, और आज समझ में आ रहा है कि उस काम की वजह से कितने हम लोग प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन इज एसेंशियल पार्ट फॉर द health care system in the country. On the most cost-effective strategies for increasing pandemic preparedness, especially resources constrained setting, is investing in core public health infrastructure, including वाटर सैनिटेशन सिस्टम। इसलिए समय की मांग है कि हम हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, कोविड-19 के बाद इस पर फोकस करें, ताकि जो वाटर सैनिटेशन हाइजीन का जो इशू है वो और स्ट्रेंथन हो जाए। प्रायोरिटीज एरिया क्या है? तो प्रायोरिटीज एरिया वही है, वाटर सैनिटेशन, इंप्रूविंग हैंड वॉश बिहेवियर, फूड हाइजीन एंड सेफ वाटर प्रैक्टिस के बिहेवियर को हमको पढ़ाना होगा। इमर्जिंग सपोर्ट टू सिक्योर एक्सटेंड वाटर सैनिटेशन सर्विस इन एवरी एरिया, सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज को बढ़ाना होगा। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर को बढ़ाना होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट टू वाटर एंड सैनिटेशन और इसको यूटिलाइजेशन की स्थिति को बढ़ानी होगी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू बेनिफिशियरीज टू इंश्योर द कंटिन्यू ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर फैसिलिटीज एंड इंश्योरिंग द वायबिलिटी ऑफ क्रिटिकल सप्लाई चेन सच एज हाइजीन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन द मार्केट्स। ये सारे हमारे पोस्ट कोविड-19 प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। To conclude it and to submit my some suggestion, I can say that India is using global burden of disease results and the growing interest in these types of descriptive epidemiology and data synthesis will require more training and capacity building. Above and beyond the traditional training in biostatistics and epidemiology, there are extra techniques and skills that need to be taught. हमको और अधिक स्किल्ड होना होगा और अधिक अवेयर होना होगा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अभी नोबेल मिला था हमारे उसको क्या उनका नाम है, थैलर को। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आर शोन एज नजेस, NUDGES कैपिटल लेटर्स, रिटन बाय थैलर एंड सस्टेन्ड इन 2008, कैन बी क्रूशियल in getting the necessary response from the individuals, which in turn can determine the success of failure of policy. नज पॉलिसी को एक बार हम लोग रीथिंक करें, कैसे नज पॉलिसी काम करता है। नज स्टैंड फॉर इंसेंटिव्स, N अंडरस्टैंड मैपिंग, U डिफॉल्ट्स, गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, D गिव फीडबैक, जी हमको फीडबैक लेते होना चाहिए कोविड-19 के हर तरफ से, एक्सपर्ट एरर, E कहाँ हम एरर गलतियां कर रहे हैं, और यस फॉर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स चॉइस। तो ये सारे नज के जो इफेक्ट हैं उसमें मेनी एक्सपर्ट्स नाउ डेज सजेस्टिंग दैट N, U एंड यस, दैट इज इंसेंटिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग मैपिंग एंड स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स चॉइस आर द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टू टैकल द फॉल आउट फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। तो भारत ने इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिया है, मैपिंग भी करना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं से कॉम्प्लेक्स चॉइसेस को भी देखना शुरू कर दिया है बहुत सारे मीटिंग में। तो इस तरह से नज इफेक्ट को हमको रिवाइव करना होगा, बिहेवियर इकोनॉमिक्स को लाना होगा। लेकिन सबमिशन क्या है मेरा, द मूवमेंट एक्सटेंशन विल पुअर इकोनॉमिकली डिवेस्टिंग फॉर द पुअर। This crisis will impact Indian economy too. With the background of this presentation, my presentation, I will try to focus on few ancient thought for the sake of behavioral change. That is, we should, and time has ripped out that we should talk about the Indian ancient economic thought, and the study of ancient aspect of economic analysis gives the power of rethinking about the foundations of the theoretical ideas which they accepted today in economics. पुराने विचार को भी हमको लेना होगा, and the study of thoughts help us to know that achievements, the failure, the capabilities and limitations of different theoretical and of different theories. किसी भी चीज को रिवाइव करना एक तरह से इनोवेशंस होते हैं, और उसको चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए पूरी दुनिया को। ए नॉलेज ऑफ द पास्ट इज हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर्स। जो नज ने कहा था वो हमारे एंशिएंट थिंकर्स ने कहा है, और कौटिल्य और थ्रूविलर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। बहुत शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि इन द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आर द डिवीजन ऑफ accumulations wealth between the various members of the community and annual income between the various members of the community. Our ancient Indian economics tries to harmonize the rival claims of the individual and the community in the field of distribution.
कौटिल्य एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस वाज ए गाइडलाइंस प्रिंसिपल। कौटिल्य को पढ़ेंगे तो कौटिल्य ने फैमिन के समय राज्य के रोल को बताया था और कैसे लोगों की मदद की बात कही थी। थिरुवलर ने क्या कहा था? फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एज वन ऑफ द बेसिक फ्रीडम ऑफ मैन एंड दैट नेक्स्ट ओनली टू फ्रीडम एंड फ्रॉम हंगर। उन्होंने फ्रीडम फ्रॉम डिजीज की बात की थी। थिरुवलर को भी हमको याद करना चाहिए, आज के दौर में पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू थिरुवलर, ए किंगडम इज दैट विच कंटिन्यूज टू बी free from excessive starvation, irremediable epidemics and destructive force। वही किंगडम अच्छा होता है जो इससे मुक्त होगा। तो भारत को इन दोनों विचारकों को पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। और इवन गांधी और मेहता तक अगर हम आएंगे तो गांधी also advocated the principle of deliberate limitations of human wants which would help the individuals achieve happiness। गांधी भी वही बात कहते हैं कि खुशी के लिए अपने वांट्स को लिमिटेड कीजिए। आज हम लॉकडाउन के पीरियड में अपने वांट्स को लिमिटेड करके गांधी के ट्रस्टीशिप को फॉलो कर रहे हैं। द गांधीयन अप्रोच हैज द एबिलिटी टू चेंज द लाइफ स्टाइल्स एंड मोरल इथोस, जो आज लॉकडाउन में पूरी भारत सीख रहा है, पूरे भारत से पूरी दुनिया सीख रही है। इंडिविजुअल्स एज वेल एज टू सोसाइटी बाई एम्फेसाइजिंग द लिमिटिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। आज देखिए ह्यूमन वांट्स हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं और ट्रस्टीशिप, जितने एनजीओज हैं, जितने मदद करने वाले लोग हैं, खुले हाथ से पूरे सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए एक मॉडल है। एंड इवन प्रोफेसर जेके मेहता वुड से and he always used to say that always be immortal because of his economics of wantlessness। हमेशा वो अमर रहेंगे अपने wantlessness थ्योरी के लिए, जिसको बहुत सारे लोगों ने नकार दिया। आज वही wantlessness इकोनॉमी की थ्योरी हमारे देश को स्ट्रेंथन करने में मदद कर रही है, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। And since we are badly impressed with the want maximization hypothesis, हमेशा हम अधिक से अधिक अपने वांट को या अपने डिमांड को पूरा करें या अपने शौक को पूरा करें, इस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ने की परिकल्पना के साथ इकोनॉमिक्स के मॉडल को बनाते रहते हैं। वी आर अनेबल टू सॉल्व आवर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। इसलिए हम अभी तक अपने इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए और कोविड-19 जैसे एपिडेमिक को दुनिया कैसे संभाले, इसके समझ से बाहर हो जाएगा। हमारे पास गांधी व मेहता रिसेंट के हैं, हमारे पास कौटिल्य और थिरुवलर पहले के हैं। वैदिक परंपरा में बहुत सारी बातें कही गई हैं, रामचरितमानस में बहुत सारे एथिक्स की बात की गई हैं। वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियरल एथिक्स सो दैट world can learn from India and virtually the solution of all problems consist in the following path of wantlessness and ethics model. So thank you. My summation is that change your behavioral aspects. Ethical points should be in the center of economic